Good morning, friends. Welcome to one more video of Trade with Edge, our pre-market report. Let's start with some important news update. Trump said that Canada car tariffs could go up. Don't want cars from Canada. Trump on China, tariff rate for China could come up over next 2 to 3 weeks. And US tariff could save up to half a percent point of India's GDP, says Finance Secretary. Result front पे Bajaj Finance declared that Bajaj Finance will be considering bonus issue along with result on 29th April. Some good news for Bajaj Finance. Syngene profit beat estimate by 5%, revenue up 11%, margin dipped by 60 basis points, and FY26 guidance below expectation. They have cut the guidance. Canfin Homes profit up 12%, NII up 6%. Bajaj Housing Finance profit up 50% and revenues up 25%. LTIM profit up 4%, revenue up 1.1%, but numbers are below estimate. And Tata Consumer numbers beat all estimates. So now on consumer stocks, FMCG stocks, so we are seeing some good numbers. So that could be a turnaround for the sector. आज का important results है. Some important results today are Liver, Axis, Nestle, SBI Life, Tech Mahindra, Macrotech, SBI Cards, Adani, Persistent System Emphasis, LTTS, ACC, Laurus Lab, IEX, and Cient. Few nifty heavyweight numbers today. Liver, Axis Bank, be action full day, and today we have nifty expiry also. ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट कल भी 1% पॉजिटिव क्लोज हुए हैं. नास्डेक वाज अप 2.5% and Dow future currently now trading at a flat. European markets were heavily up 2% CAC, 3% DEX. एशियन मार्केट में मिक्स ओपनिंग दिख रही है. निक्के इज अप, हैंग सेंग ताइवान कॉस्पी हैज माइल्डली डाउन एंड गिफ्ट निफ्टी इज ओपनिंग 50 पॉइंट्स डाउन. आज निफ्टी का एक्सपायरी है, सो वी हैव टू सी हाउ मार्केट बिहेव. एंड पिछले काफ़ी दिनों से हमें कोई शॉर्ट बिल्टअप देखने नहीं मिल रहा है, ओनली लॉन्ग बिल्टअप. तो अगेन आइनॉक्स विन, नाइका, सेंट, डिलीवरी, IIFL, सारे स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप है. ओआई फ्रंट पे तो कल क्या हुआ, मार्केट आफ्टर गैप डाउन एक अच्छा सपोर्ट लेके निफ्टी रिकवर हुआ एंड रीजन फॉर दैट वाज दिस शॉर्ट कवरिंग. एंड मैंने ऑब्जर्व किया एक बात, जब एनी एक्सपायरी, जब कोई भी राइटर्स आइदर साइड ट्रैप होते हैं तो टिल एक्सपायरी जो ट्रैप कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स होते हैं, दे ट्राई टू एग्जिट. तो ऐसे शार्प रिकवरीज आती रहती है. एंड दिस वाज द रीजन ये जो अनवाइंडिंग हुआ है कॉल राइटर्स का. decent put writing around 24,200 to 24,300 level. Call writers are not that aggressive because Nifty closed at day high. And open position की बात करें तो there is resistance at 24,300 level and 24,000 का एक support level है. OI writing से दिख रहा है. So we can see the heavy call and put writing. So expectation would be a sideways market between 24,000 to 24,300 level. Now let's see, are we reaching the climax of this rally? Because what I see here is Nifty एक Bollinger Band and swing resistance के आसपास पहुंच रहा है. Level is at around 2,100. Maybe with some dip or immediately we achieve this level, but yes, market are slightly getting tired. आज के लेवल्स क्या रहेंगे? सो आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स वुड बी, वीक बिलो लेवल रहेगा 24,227 के नीचे 24,125 वुड बी फर्स्ट टारगेट एंड 24,013 वुड बी नेक्स्ट टारगेट. एंड स्ट्रॉन्ग अबो लेवल रहेगा 24,359 जिसके ऊपर 24,500 का एक टारगेट देखने मिल सकता है. बैंक निफ्टी तो कल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था दैट 56,180 पे एक फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल आ रहा है.
and we are already stretched above weekly Bollinger Band. एंड कल यहाँ पे हमें एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी देखने मिला है. सो लास्ट 2 डेज का लो अगर ब्रीच होता है, सो कल का अगर लो ब्रीच होता है, दैट वुड बी स्लाइटली नेगेटिव फॉर बैंक निफ्टी. तो कीप दिस लेवल ऑन रडार. अगर लेवल्स की बात करें तो 55,172 वुड बी वीक बिलो लेवल, जिसके नीचे हमें 54,681 एंड 54,370 के टारगेट्स देखने मिलते हैं. एंड स्ट्रॉन्ग अबो लेवल इज 55,682 एंड 55,972. स्ट्रॉन्ग अबो लेवल वुड बी 55,682 एंड 55,972 का टारगेट देखने मिलता है. अब चलिए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं. तो स्टॉक फ्रंट पे आई कैन सी हियर ऑटो इंडेक्स में एक ब्रेकआउट आ रहा है. आप देख सकते हैं चैनल ब्रेकआउट है ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स में. एंड अलोंग विद दैट आई कैन सी स्टॉक स्पेसिफिक ऑटो इंडेक्स में अशोक लेलैंड में देयर इज अ ब्रेकआउट. बजाज ऑटो इज ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट. एंड इनफैक्ट एमएनएम में भी एक ब्रेकआउट आया है. तो यस, ऑटो सेक्टर एक रडार पे रहेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज. निवा बुपा में कल विथ ह्यूज वॉल्यूम एक ब्रेकआउट आया है. एंड यस, दिस ब्रेकआउट वाज सपोर्टेड बाय मोतीलाल ओसवाल का रिपोर्ट विथ 100 रुपीज टारगेट. एंड यहाँ पे एक आईपीओ लिस्टिंग डे का ब्रेकआउट भी आया है. सो आईपीओ थियरी की अगर बात करें, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं आईपीओ थियरी पे, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कैसे आईपीओ थियरी वर्क करती है. जैसे लिस्टिंग डे का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देख रहा है. And Oberoi Realty is also at breakout level, and Elkem with decent volume एक swing high का breakout दिया है, and trend line breakout is also there. So yes, ये कुछ स्टॉक रहेंगे जो रडार पे रहेंगे. थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप मुझे रीच कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, ट्विटर. आपको अगर ऑफलाइन क्लास अटेंड करना है तो मेरा नंबर दिया है स्क्रीन पे, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. एंड आपको बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी सीखना है तो लिंक में बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी कोर्स का डिस्क्रिप्शन में. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो